friends and my dear students. Welcome you all on the digital platform of Swastika Academy. I am Vaibhav Pandey, who will deal in Madhya Pradesh General Knowledge. So first of all, I will let you know that what we have studied in our previous lecture. In that lecture we have studied what is the importance of MP, what should be the strategy must be followed in order to complete and comprehend the subject. In that lecture, I have divided MP into 5 major portions or 5 major parts. First part is geography, second was culture, third was history, fourth was scheme and current affairs, and fifth was study of divisions. Now I am going to start with first division of MP, that is geography of MP. In that division, I am going to start a very fresh and very important topic, which is very important for competitive point of view. The geography of MP. The geography of MP. In this, we are starting with first topic, that is physiography of MP. Now, the question will arise in your mind that what do you understand by the physiography? Physiography is nothing but it is the regional study of physical features of an area, which includes topography, soil, vegetation. This topography means study of mountain and rivers, mountains and rivers, hills, plain, plateau. Right? Now, in simple word, I can say that physiography is the regional study of physical features like mountain, rivers, hills, plain, plateau, soil, vegetation, etc. Right? Now, one thing you should note that Madhya Pradesh is a landlocked state. Madhya Pradesh is a landlocked state, which is touched by 5 major states, which includes Rajasthan, UP, Chhattisgarh, Maharashtra and Gujarat. MP has an area of 308,252 square kilometer. 308,252 square kilometer. Now, MP has wide range of topography and different climatic conditions. MP has wide range of topography and different climatic condition. On the basis of topography and different climatic condition, we have divided MP into 3 major area. Physiographically, we divided MP into 3 major areas. First, physiographically, MP is divided into 3 major areas. First,
Central Highland, second Satpura, Mekal, and third is Baghelkhand, Plateau. देखिए, ये पीटी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी को कितने फिजियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया जाता है, तो इट शुड बी नोटेड दैट इट इज ओनली 3, नॉट 7. Now, Central Highland is further subdivided into 5 major parts. Now, Central Highland is further subdivided into 5 major parts, which include, first one is your Central India Plateau. First one is Central India Plateau. Second one is Bundelkhand Plateau. Third one is Malwa Plateau. Fourth one is Narmada Son Valley. And fifth is Riva Panna Plateau. And fifth is Riva Panna Plateau. Or in some books, it is also given as Vindhyanchal Plateau. अब देखिए, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन को किसी भी, हमारे पास ये टोटल 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन है और हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ने का एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है. उस सेट ऑफ क्राइटेरिया को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है. उस सेट ऑफ क्राइटेरिया में 5-7 पैरामीटर्स होते हैं. अब वो पैरामीटर्स देखिए वो क्या क्या होते हैं. पैरामीटर्स टू स्टडी ईच फिजियोग्राफिक डिवीजन. First parameter is your area. Second is its outline. Third is districts. Fourth is drainage system. Fifth is soil, then it's agriculture. Rainfall and forest. And in 8th, you can also count, in 8th, you can also count major industrial regions and tourism place. So in 7 to 8 parameter, we have to study each and every physiographic unit or each and every physiographic division. Now I am starting with Central Highland. Now this Central Highland has 5 divisions. So first division is Central India Plateau. So first division is Central India Plateau.
अब देखो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में हमको डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला अगर मैं बताऊं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू it cover an area of 10.7% of total area of MP, which means MP का जितना भी एरिया है उसका 10.7% इज व्हाट, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। नाउ this plateau is outlined by Aravalli on western side, Bundelkhand plateau is on eastern side, Yamuna basin in northern side and Malwa plateau on southern side, right? तो अगर ये मेरा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है तो नदर्न साइड क्या है, यमुना बेसिन, या इसको एक्सटेंट भी बोल सकते हैं आउटलाइन की जगह। नदर्न साइड आपका यमुना बेसिन है, ईस्टर्न साइड आपका बुंदेलखंड है, सदर्न साइड आपका मालवा प्लेट्यू है एंड वेस्टर्न साइड आपका अरावली रेंज है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू। नाउ थर्ड पैरामीटर, द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट्स लाइक Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri and some part of Datia, as well as some tehsils of Neemach and Mandsaur also included in this plateau. तो देखिए, it includes Gwalior, Shivpuri, Bhind, Morena, Datia and some tehsils of Neemach and Mandsaur. Now this area is drained by Chambal river and its tributary. This area is drained by Chambal river with its ट्रिब्यूटरी। अब देखिए, ये जो चंबल रिवर है, ये एरिया, ये जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू से फ्लो होती है वहां पर क्या क्रिएट करती है, गली इरोजन। वो गली इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेवाइंस, और हम उसको इस चीज को क्या बोल सकते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी। दिस इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल, और this is the safest place for dacoit hide. Now Chambal river drains in this area, due to which this area is dominated by alluvial soil. Now if this area is dominated by alluvial soil, so in this soil major crops grown are mustard followed by wheat. Morena produces largest mustard. Morena rank first in mustard production in MP. Now this region is also known as mustard bowl of MP. Now another point is that this area receives an annual rainfall of 50 to 75 centimeter. 50 to 75 centimeter.
50 to 75 centimeter. Means this physiographic division receives least amount of rainfall in all the divisions. Now my question is, why it is so? Why this physiographic division receives less rainfall? Now if you see this physiographic division, it doesn't have any mountain range. That's why the wind, moisture laden wind coming from Arabian Sea, do not have hindrance or obstruction. That's why there is less amount of precipitation over this area. This is the major reason. यहाँ पर अगर कोई रिलीफ फीचर होता, जैसे विंध्या या सतपुड़ा, तो हो सकता था कि ये जो मॉइस्चर लेडन विंड आ रही है अरेबियन सी से, वो यहाँ पर टकराती और बारिश करती. बट दिस इज एन प्लेन एरिया, राइट? नाउ ये तो हुई हमारी रेनफॉल की बात. अगर हम यहां पर कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें, तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज आपका बानमोर एंड केलारस मुरैना में. बानमोर एंड केलारस इन मुरैना. डबरा इन ग्वालियर. These are important industrial areas. Now we will move toward our second physiographic unit. We will move toward our second physiographic unit. That is what? Bundelkhand Plateau. That is what? Bundelkhand Plateau. Now Bundelkhand Plateau is, or Bundelkhand Plateau covers 7.7% of total geographical area of MP. It covers 7.7% of total area of MP. This physiographic unit is characterized by Archean type of rock. This physiographic unit characterized by Archean type of rock, that is granite and gneiss. अब you know that कि rocks are responsible for the formation of soil. तो यहाँ पर कौन सी soil मिलती है? यहाँ पर हमको मिलती है mixed soil. Mixed soil. Mixed soil means red and yellow soil. Mixed soil means red and yellow soil. अब देखो, this soil supports which type of agriculture? Wheat, lentil, etc. This Bundelkhand Plateau includes district like Chhatarpur, Tikamgarh, Niwadi, Datia, and some part of Sagar and Damoh. इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं यहाँ पर?
तो एक है प्रतापपुर, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, पहले टीकमगढ़ में था, अब वो कहाँ पर आ गया है, निवाड़ी में, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेट्यू इज, आपने देखा होगा अभी हमने इतनी बात करी तो आपको एक चीज तो ये समझ में आई होगी कि बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है वो मोस्ट बैकवर्ड प्लेट्यू इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट सबसे मोस्ट बैकवर्ड प्लेट्यू है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इससे हट के एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो मोस्ट बैकवर्ड प्लेट्यू है, तो बैकवर्ड प्लेट्यू होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था यहाँ पर, ताकि ये रीजन भी जितने और अदर रीजन्स हैं एमपी के उन्हीं की तरह प्रोस्पेरस हो पाए और वहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर सपोर्ट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आ पाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक चीज प्रपोज कर रखी है। वो क्या प्रपोज करी थी? केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक। ये जो केन बेतवा लिंक है, इससे यहां पर बहुत सारे एडवांटेज हुए। केन बेतवा लिंक का सबसे पहले मैं मतलब बताऊंगा कि जो सरप्लस जिस रिवर का नाम पहले आएगा, जिस रिवर का नाम पहले आएगा, केन बेतवा लिंक का मतलब ये होता है कि जिस रिवर का नाम पहले आ रहा है उसका सरप्लस वाटर, समझने की कोशिश करना, जिस रिवर का नाम पहले आ रहा है उसका सरप्लस वाटर डेफिशिट रिवर में पेनिट्रेट होगा या डेफिशिट रिवर में डाला जाएगा। अब ये जो केन बेतवा लिंक है, इससे क्या एडवांटेज हुआ है यहां पर, वो समझने की कोशिश करिएगा। एक तो बुंदेलखंड हमारा कैसा रीजन है? ड्रॉट प्रोन रीजन है। तो अब देखो ड्रॉट प्रोन रीजन है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इरिगेशन में कितनी लैंड आ गई है? 6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर लैंड वो इरिगेटेड हो गई है, जो कि पहले नहीं थी। दूसरा, जब इरिगेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो एग्रीकल्चर अच्छा होने के साथ क्या होगा? एक चीज इसको नोट करिएगा सोशल एंगल से, अगर जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहां पर क्या होगा? फार्मर का सुसाइड कम होगा, फार्मर सुसाइड इज लेस। अब देखो रिवर का जो पेनिट्रेशन है वहां पर क्या होगा? एक तो आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। कौन सी? सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। अब देखो केन बेतवा लिंक को कनेक्ट करने के लिए हम एक डैम बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं दोधन डैम। वो दोधन डैम से कितना इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है? 75 मेगावाट। तो यहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो देखो दिस प्रोजेक्ट इज गेम चेंजर फॉर दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन। यहां पर अब इतनी सारी फैसिलिटीज होंगी, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आएंगी कि नहीं आएंगी? तो दिस इज द गेम चेंजर प्रोजेक्ट ऑफ दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन। नाउ this region also have tourism potential. This region also have huge amount of tourism potential. अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो यहां पर टूरिज्म के लिए सबसे फेमस चीज, जो सबसे फेमस प्लेस है, खजुराहो। These are the temple complex. Khajuraho is the temple complex which was constructed by Chandela rulers. Which was constructed by Chandela rulers. At initially there were 85 temples, but today there are only 22 temples are left in surviving conditions. Right? तो यहां पर जो खजुराहो है वो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है।
और खजुराहो का सिग्निफिकेंस ये है कि 1986 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, राइट। सेकंड, यहां पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो क्या है, ओरछा फोर्ट, ओरछा फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय वीर सिंह देव बुंदेला, कंस्ट्रक्टेड बाय वीर सिंह देव बुंदेला। नाउ दिस इज द होल एस्पेक्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू, दिस इज द होल एस्पेक्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। Now we will move toward our third physiographic unit. Now we will move toward our third physiographic unit, that is Malwa Plateau. That is Malwa Plateau. अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कुछ कुछ चीजें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ मध्य प्रदेश। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 28% ऑफ टोटल एरिया और 88,222 स्क्वायर किलोमीटर इन एब्सोल्यूट टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू इज मतलब बोलने का ये है, अगर हम मालवा प्लेट्यू की बाउंड्री देखें तो वेस्टर्न में तो अरावली है, सदर्न साइड देखोगे तो नर्मदा है, नदर्न साइड देखोगे तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड प्लेट्यू, एंड इधर विंध्याचल हिल्स। अब देखो, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मालवा प्लेट्यू है, ये बना कैसे है। तो समझना ये बना कैसे है, ये बना है लावा के फॉर्मेशन से। इसमें क्या हुआ है, इट इज फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखिए, ये जो मैग्मा था, ये जो मैग्मा था ये इतना फ्लूइड था, विस्कस नहीं था। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा कहाँ से निकला है, मेंटल कोर बाउंड्री से। ये मैग्मा कहाँ से निकला है, मेंटल कोर बाउंड्री से। तो ये यहाँ से जो भी मैग्मा निकलता है वो फ्लूइड रहता है, ना कि विस्कस नेचर का। तो फ्लूइड मैग्मा जो रहेगा वो दूर तक फैलेगा। कैसा रहेगा? फ्लूइड मैग्मा दूर तक फैलेगा तो एक्सटेंसिव प्लेट्यू का फॉर्मेशन करेगा। कैसा फॉर्मेशन करेगा? एक्सटेंसिव प्लेट्यू का फॉर्मेशन करेगा। और जब भी एक्सटेंसिव प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है तो वो एरिया हाईली फर्टाइल होता है, वो एरिया हाईली फर्टाइल होता है। अब वो एरिया हाईली फर्टाइल क्यों है? क्योंकि लावा से जो बनने वाली सॉइल है वो कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल। अब देखो, कोई भी सॉइल अगर ब्लैक सॉइल है तो वो कौन सा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट करेगी? वो सपोर्ट करती है कॉटन, वो सपोर्ट करती है ग्राउंडनट, वो सोयाबीन, वो सपोर्ट करती है व्हीट। तो अगर आप देखो, ये जो हम मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं ये इतना प्रोस्पेरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर होता है। कैसा एग्रीकल्चर होता है? बहुत ही अच्छा। अगर मैं बोलूँ
तो एमपी रैंक थर्ड इन कॉटन प्रोडक्शन आफ्टर गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब देखिए ये जो कॉटन है ये भी कौन से रीजन में ज्यादा होता है? खरगोन। कौन से रीजन में कॉटन ज्यादा होता है? खरगोन। खरगोन को हम क्या बोलते हैं? एक और फैक्ट, व्हाइट गोल्ड रीजन ऑफ एमपी। कौन सा? व्हाइट गोल्ड रीजन ऑफ एमपी, राइट। ग्राउंडनट भी खंडवा खरगोन में काफी मात्रा में होता है। फिर अगर सोयाबीन की बात करें तो टोटल इंडिया का 57%, टोटल इंडिया का 57% का जो प्रोडक्शन है वो एमपी से ही होता है। और यहां से 90% ऑफ द सोयाबीन प्रोडक्शन होता है। जो 57% का 90% वो मालवा प्लेट्यू से ही इटसेल्फ होता है, राइट। तो इसीलिए हम एमपी को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट। इसीलिए हम एमपी को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट। अब देखो, मालवा प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ एमपी। मालवा प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज व्हीट ग्रेनरी ऑफ एमपी। अब देखो यहां पर कौन कौन से मेजर रीजन्स हैं व्हीट प्रोडक्शन के? सीहोर, रायसेन, सागर, होशंगाबाद। इवन सीहोर और सागर में एक्सपोर्ट क्वालिटी का वीट प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट सीहोर और सागर में हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का वीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर। अब देखो, अगर एक चीज और देखो, मालवा प्लेट्यू इंक्लूड्स 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। कितने डिस्ट्रिक्ट, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स मालवा प्लेट्यू में आते हैं, तो वो कितना है नंबर? 18। अब देखो, जैसे 18 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूं कौन कौन से, जैसे कि ताकि आपको एक वाइड आइडिया लग जाए कि जैसे धार, उज्जैन, देवास, इंदौर, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, झाबुआ, these all the districts comes in Malwa Plateau। अगर कोई भी पूछे तो कितने डिस्ट्रिक्ट? 18 डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट एस्पेक्ट देखें हम, इंडस्ट्रियल रीजन। क्या देखेंगे? इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन में अगर आप देखोगे तो पीतमपुर, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और पीतमपुर को हम क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट ऑफ एमपी। क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट ऑफ एमपी। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस रीजन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है वो है मंडीदीप। मंडीदीप, इट इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और मंडीदीप से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा गया है प्रीलिम्स में कि यहां पर कौन सी एक फैक्ट्री है इंपॉर्टेंट? ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री। ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री जो कि हमने किसके सहयोग से बनाई है? जापान के। जो कि हमने किसके सहयोग से बनाई है? जापान के, राइट। तीसरा इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है यहां पर मेघनगर, इट इज इन झाबुआ। मेघनगर, इट इज इन झाबुआ। एंड फोर्थ टीलूखेड़ी, इट इज इन राजगढ़। पीलूखेड़ी, इट इज इन राजगढ़। नाउ this physiography has huge tourism potential. This physiography has huge tourism potential.
फर्स्ट, रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म में यहां पर आप देखेंगे महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, these are two Jyotirlings situated in Malwa Plateau. Now, adventurous tourism. आप देखोगे तो हनुमंतिया, एडवेंचरस टूरिज्म में अगर आप देखोगे तो हनुमंतिया और राला मंडल, सेंचुरी, राइट। तो दिस इज द टूरिज्म एस्पेक्ट्स ऑफ मालवा प्लेट्यू। बहुत सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी हम पासिंग रेफरेंस से ही शो करेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में बड़ा टॉपिक है। और जब हम टूरिज्म पोटेंशियल करेंगे तो हम हर फिजियोग्राफिक यूनिट की हम हर एक चीज, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म वी विल डिस्कस इन दैट टॉपिक। नाउ आर फोर्थ physiographic unit of Central Highland is Narbada Son Valley. नर्मदा सोन वैली। अब देखिएगा, कुछ पॉइंट नोट करिएगा। पहला पॉइंट कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ एमपी। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ एमपी। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या थी? मालवा प्लेट्यू। कवर्स एन एरिया ऑफ 26% और अप्रोक्सीमेटली अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो 86,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो, आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि ये जो नर्मदा सोन वैली है, ये जो नर्मदा सोन वैली है, इसका क्रिएशन कैसे हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फिजियोग्राफिक यूनिट की यही है कि नर्मदा सोन वैली का क्रिएशन कैसे हुआ है। नोट करिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर हम डिस्कस करते हैं, इसका मैकेनिज्म कि ये जो नर्मदा सोन वैली है वो कैसे क्रिएट हुई। तो देखिए, आपको एक चीज आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी कि अर्थ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा है, राइट? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब अगर ये मैं मानूं, ये मेरा ये मेरा क्रस्ट है, राइट? ये मेरी मेंटल कोर बाउंड्री है। तो देखो, मैंने क्या बताया था, मेंटल कोर बाउंड्री से हमेशा जो भी लावा आता है वो क्या रहता है? फ्लूइड, लेस विस्कस, लेस डेंसर। तो जब वो इतनी प्रेशर से ऊपर निकलता है तो वो जो लावा आ रहा है नीचे से ऊपर की ओर, मैं उसको क्या बोलूंगा? मेंटल के कन्वेक्टिव करंट। क्या बोलूंगा? मेंटल के कन्वेक्टिव करंट। अब देखो, मेंटल के कन्वेक्टिव करंट धीरे धीरे ऊपर जब आते हैं तो अर्थ क्रस्ट तक जब पहुंचेंगे तो यहां पर जब हिट करेंगे तो यहां पर क्या प्रोड्यूस करेंगे? फॉल्ट्स।
क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉल्ट। अब जब भी ये क्रस्ट पे ये जो भी मेंटल से जो कन्वेक्टिव करंट निकल रहे हैं और यहां पर धीरे धीरे आते हुए इसको टच कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो हिट करने से क्या हो रहा है? फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। अब जब ये हिट करते हैं तो डाइवर्ज होते हैं। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेंटल के कन्वेक्टिव करंट आ रहे हैं, और जब अर्थ क्रस्ट से टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद ये कैसे होते हैं? डाइवर्ज करते हैं। कैसे होते हैं? डाइवर्ज करेंगे। तो जब डाइवर्ज करेंगे ये, तो जब डाइवर्ज करेंगे यहां पर फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है। मतलब फॉल्ट लाइन का मतलब मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो क्या होगा? दरार। अब जब दरार क्रिएट हो गई है और ये जो डाइवर्जिंग लिम्ब है मेंटल के कन्वेक्टिव करंट के, ये जो कौन से लिम्ब है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लिम्ब क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं। तो इसमें खिंचाव करेंगे कि नहीं करेंगे? टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा कि नहीं होगा? ये जो टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा उससे क्या होगा कि यहां पर ये जो फॉल्ट लाइन है ये और धीरे 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 इसकी विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। वो क्या होगी? फॉल्ट लाइन की ये जो विड्थ है ये दोनों बढ़ती जाएंगी, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये जो बीच वाला ब्लॉक है, ये जो बीच वाला ब्लॉक है ये नीचे की ओर गिर जाएगा। समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहां पर इमेजिन करवा रहा हूं। ये आपको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा? ये आपको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। भाई फॉल्ट लाइन के अलोंग ये जो स्टैंड स्टिल ब्लॉक्स हैं ये ऐसे खड़े रह गए और बीच वाला ब्लॉक सबसाइड हो गया और सबडक्ट हो गया। तो देखो, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम देखेंगे तो मैं इसको क्या बोलता हूं? होस्ट। इसको क्या बोलता हूं? होस्ट। और ये मेरा क्या है? ग्रेबन। और ये मेरा क्या है? ग्रेबन। होस्ट आर नथिंग बट दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स। होस्ट आर नथिंग बट दे आर द ब्लॉक माउंटेन, एंड ग्रेबन इज नथिंग, इट इज एन रिफ्ट वैली। ग्रेबन इज नथिंग बट इट इज एन रिफ्ट वैली। तो ये मेरे विंध्या हो गया नदन साइड, और ये मेरा सदन साइड क्या हो गया? सतपुड़ा। और यहां से आपकी क्या फ्लो हो रही है? रिवर नर्मदा। यहां से आपकी क्या फ्लो हो रही है? रिवर नर्मदा। तो एक चीज आपको आई समझ में कि नर्मदा रिवर कहां से फ्लो हो रही है? रिफ्ट वैली से। कौन से दो माउंटेन के बीच में? विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन। अब देखो, नर्मदा रिवर के बारे में कुछ कुछ चीजें नोट करिए आप, क्योंकि ये डिवीजन पढ़ने के लिए हमको 2-3 पैरामीटर्स पता होना चाहिए। जैसे कि हमने एरिया देख लिया, फिर हमने दूसरा एस्पेक्ट क्या दिया? देखा कि रिफ्ट वैली जो है, नर्मदा सोन वैली, वो कैसे क्रिएट हुई है, और तीसरा जो नर्मदा रिवर है उसके बारे में कुछ हमको पॉइंट्स जानने की जरूरत है। देखिए, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स. It flows in westward direction. It is the 5th largest river of India. It is the 5th largest river of India, having total 41 tributaries. Having total 41 tributaries. 22 from left hand side and 19 from right hand side. So, we shall discuss some important tributaries, which includes here. This is Banjar, Sher, this is Shakar.
and this is Hathni river. This is Hathni river. तो हमने क्या क्या नोट करा कि नर्मदा रिवर इज द 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, originates from Amarkantak hills, having a length of 13-12 km, and in MP it flows 1077 km. It flows only for 1077 kilometers, right? The river Narmada drains into Arabian Sea. It has 41 tributaries. Now one thing you should note that कि नर्मदा रिवर फॉर्म्स एस्चुरी. नर्मदा रिवर फॉर्म एस्चुरी. अच्छा, ये एस्चुरी ही क्यों बना रही है, ये डेल्टा क्यों नहीं बना रही है? इसमें भी एक आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये व्हाई दिस रिवर इज मेकिंग एस्चुरीज नॉट डेल्टा. देखो, ये जो नर्मदा सोन वैली है और ये जो रिफ्ट वैली है, ये काहे से बनी हुई है? लावा से बनी हुई है, राइट? अब लावा से बनी हुई है मतलब क्या कि यहां पर कौन सी रॉक प्रिवेलेंट होगी? इग्नियस रॉक. अब जो इग्नियस रॉक होती है वो क्या होती है? लेस प्रोन टू इरोजन. इग्नियस रॉक कैसी होती है? लेस प्रोन टू इरोजन. तो जब भी ये ऊपर से बहेगी तो जो रॉक के सेडिमेंट्स ये लाती है और डिपॉजिट करेगी वो बहुत ही मिनिमल रहते हैं. ये रिवर डायरेक्टली फ्लो होके तुरंत ही अरेबियन सी में मीट कर जाती है. ये ब्रेडेड चैनल नहीं बनते हैं. जहां पर ब्रेडेड चैनल बनेंगे इस तरह जो रिवर से डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डेल्टा बनाती है, ना कि नर्मदा. तो नर्मदा ऑलवेज फॉर्म एस्चुरी, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट नर्मदा सोन वैली. नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर last unit of Central Highland, that is देखिए, it covers an area of 10.37% of total area of MP. राइट? कितना परसेंट? 10.37. अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लूं तो वो 31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा, राइट? अगर ये फिजियोग्राफिक यूनिट है, इसमें ये कौन सी रॉक से बना हुआ है? विंध्यन टाइप ऑफ रॉक. ये कैसी रॉक से बना हुआ है? विंध्यन टाइप ऑफ रॉक. इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? इसमें सतना, रीवा, पन्ना, कटनी. कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सतना, रीवा, पन्ना, कटनी. अब देखो, ये अगर देखोगे तो दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय सोन रिवर, टोन्स, केन, एक्सेट्रा. कौन सी रिवर? सोन, टोन्स, केन. अगर टोन्स के देखोगे तो टोन्स की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? बीहड रिवर. बीहड रिवर में कौन सा वाटरफॉल है? चचाई. कौन सा वाटरफॉल? चचाई. It is the highest waterfall of MP. अब देखो एक चीज और,
यहां पर विंध्यन टाइप ऑफ रॉक है। अब विंध्यन टाइप ऑफ रॉक में जो मिनरल्स मिलते हैं उसमें देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जो मिनरल्स मिलेंगे वो यहां पर हमें क्या क्या मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वही डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमें पासिंग रेफरेंस देके ही आगे बढ़ना है। लाइमस्टोन एंड डायमंड। अब डायमंड की बात करोगे तो एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। 90% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम एमपी ओनली, राइट। अब अगर लाइमस्टोन की बात करें तो देखो यहां पर लाइमस्टोन इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। लाइमस्टोन इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। अब देखिए मैं आपको उस चीज पे बताता हूं कि कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ सकते हैं, अगर लॉजिकल रीजनिंग आपकी जानना चाहेंगे तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि व्हाई सीमेंट प्लांट और सीमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन ओनली। क्यों? देखिएगा, सीमेंट इंडस्ट्री के लोकेशनल फैक्टर्स। देखो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि सीमेंट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री, तो हैवी इंडस्ट्री कहां पर लोकलाइज होगी? जहां पर उसको मिनरल की अवेलेबिलिटी होगी, राइट, जहां पर उसको मार्केट मिलेगा, जहां पर रेलवे लाइंस होंगी। तो अब देखिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए रहता है। तीन चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, वो जानने की कोशिश करिए। सबसे पहला कोल, राइट, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड लाइमस्टोन, और थर्ड जिप्सम। जिप्सम क्या करता है? इट रिटार्ड्स सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जिप्सम क्या करता है? इट रिटार्ड्स सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ताकि कहीं जैसे बाहर दूर जगह उसका कंक्रीट तैयार हो रहा है और हमें उसको साइट पे लाना है तो बीच में ही ना जम जाए, तो सीमेंट हम उस लिए मिलाते हैं। अब देखिएगा मैंने क्या बताया, रीवा पन्ना प्लेट्यू में लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो ये जो जिप्सम है ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो रीवा में मिलता है ये जिप्सम। अब देखो ये कोल जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है उसके एडजॉइनिंग एरिया में मिलता है, जो कि क्या है आपका? सीधी सिंगरौली। क्या है? सीधी सिंगरौली। और देखिएगा ये जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है यहां से एक रेलवे लाइन पास होती है। कौन सी रेलवे लाइन पास हो रही है? जबलपुर मुंबई। तो जबलपुर मुंबई से पास होने से क्या हो रहा है? जो यहां पर सीमेंट बन रही है वो मार्केट में डायरेक्ट क्या हो रही है? डिलीवर्ड हो रही है। क्या हो रही है? डिलीवर्ड हो रही है। इसलिए जो सीमेंट का लोकलाइजेशनल फैक्टर्स हैं, इसलिए ये रीजन उतना सुटेबल है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रीवा पन्ना प्लेट्यू। दिस इज द लास्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। Now we will move toward the most interesting physiographic unit or the second physiography division, that is Satpura Mekab.
दिस इज व्हाट सतपुड़ा मैकाल फिजियोग्राफिक डिवीजन, राइट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरी फेवरेट फिजियोग्राफिक यूनिट है जिसको बहुत अच्छे से हमें समझने की ज़रूरत है। पहला अगर मैं बताऊं तो सतपुड़ा मैकाल फिजियोग्राफी डिवीजन कवर 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ एमपी, which is approximately 34,000 square kilometer in absolute term. 11% of total area, right? Second, it includes district like अनूपपुर, मंडला, होशंगाबाद, आपका खरगोन, बड़वानी, खंडवा, these all are the district included in this physiographic unit. Now most important point related to सतपुड़ा मैकाल रेंज। देखो अगर इस रेंज को समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको फिजियोग्राफिकली इसको डिवीजन के फॉर्म में बताऊंगा, जैसे कि this is your western Satpura, this is your Burhanpur Pass, right? This is your Mahadev range, and this is your मैकाल रेंज। अब देखो वेस्टर्न सतपुड़ा को हम क्या बोलते हैं? राजपीपला। क्या बोलते हैं? राजपीपला। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना चाहोगे तो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू भी बनाता हूं, और वो इस बार की 2019 पीटी में पूछा भी गया है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक यूनिट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, दिस इज राजपीपला हिल्स, बड़वानी, अखरानी, असीरगढ़, महादेव, छिंदवाड़ा, बैतूल हिल्स, और दिस इज मैकाल। तो देखो ये वेस्टर्न सतपुड़ा हुआ, ये मेरा सेंट्रल सतपुड़ा हुआ, और दिस इज व्हाट ईस्टर्न सतपुड़ा। अब अगर मेरे को राजपीपला को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? राजपीपला comprises undulating relief which includes बड़वानी हिल, अखरानी हिल, असीरगढ़, राइट। अब हम आते हैं सेंट्रल सतपुड़ा पे। तो सेंट्रल सतपुड़ा इंक्लूड्स महादेव रेंजेस। अब देखिएगा कुछ पॉइंट यहां पर नोट करने की जरूरत है, जैसे कि महादेव
hills और central Satpura is the elevated portion of Satpura region. अगर आप महादेव रेंज में बात करोगे तो जो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है जिसको हम क्या बोलते हैं, धूपगढ़, 1350 मीटर, इज ऑल्सो सिचुएटेड इन महादेव रेंज. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. अब देखो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो महादेव रेंज है उसमें एमपी की जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हम पचमढ़ी बोलते हैं वो भी महादेव रेंजेस में ही लोकेटेड है. तो पचमढ़ी इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन महादेव रेंज. ये देखो एक बार पीटी में ये पूछ चुके हैं, एक बार पचमढ़ी का पूछ चुके हैं, पचमढ़ी कौन सी रेंज में लोकेटेड है, तो पचमढ़ी इज लोकेटेड ऑन महादेव रेंज. अब देखो पचमढ़ी के बारे में भी 2-4 फैक्ट्स जानने की कोशिश करो कि पचमढ़ी इज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी. क्या है ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी, जो कि कब डेसिग्नेटेड हुआ था, 1999 में. 1999 कब डेसिग्नेटेड हुआ था, यूनेस्को के मेंस एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 1999 में. और ये इंडिया का कौन से नंबर का है, ये इंडिया का 10th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है. ये इंडिया का 10th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है. हाँ, बायोस्फीयर से ये याद आया कि हमने जो रीवा पन्ना पढ़ा था, तो पन्ना इज ऑल्सो इन बायोस्फीयर. थोड़ा मैं यहाँ पर डिस्कशन ब्रेक करूंगा और वहां पर ले जाऊंगा क्योंकि चीजें कुछ छूट गई हैं कि पन्ना इज सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी. और डेजिग्नेटेड कब हुआ था, 2018 में. डेजिग्नेट कब हुआ था, 2018 में. और पन्ना से रिलेटेड एक चीज और कि जो पन्ना है उसको हम कौन सा जिला बोलते हैं, आंवला जिला. क्यों, क्योंकि आंवले का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो पन्ना में होता है. एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि जो नेचुरल ऑकरिंग टीक्स हैं, टीक मतलब सागौन, तो पन्ना इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सागौन. क्योंकि पन्ना के बाद आपको जो सागौन के वृक्ष हैं वो नहीं मिलेंगे. पन्ना इज द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ सागौन ट्री. ये हुआ पचमढ़ी. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा. राइट, ये दोनों क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल, हमें इसे हमेशा दिमाग में ही बैठा के रखना है. मैकाल रेंज, इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा, मैकाल रेंज. अब देखिएगा मैकाल रेंज में एक इंपॉर्टेंट हिल है जिसको मैं क्या बोलता हूं, अमरकंटक हिल्स. कौन सी हिल है, अमरकंटक हिल. अब ये जो अमरकंटक हिल है, इट इज एग्जिबिटिंग what type of drainage pattern, it is exhibiting radial drainage pattern. Mark my word, I am saying which type of pattern, radial drainage pattern. Radial drainage pattern means एक ये हिल है, हिल से डिफरेंट डायरेक्शन में कितनी रिवर ओरिजिनेट होती हैं, तो वो जो पैटर्न बनता है रिवर का वो मेरा होता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. अब ये देखिएगा अमरकंटक, हाउ अमरकंटक इज मेकिंग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, वो चीज को विजुअलाइज करिएगा. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां से वेस्टर्न साइड से आपकी कौन सी रिवर पास हो रही है, नर्मदा रिवर. यहां से वेस्टर्न साइड से आपकी कौन सी रिवर पास हो रही है, नर्मदा. यहां से आपकी कौन सी रिवर पास हो रही है, सोन. और यहीं से आपकी कौन सी रिवर पास हो रही है, जोहिला. तो इट इज मेकिंग व्हाट, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. अब देखो ये अमरकंटक हिल्स का एक और सिग्निफिकेंस है, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा. ये जो अमरकंटक हिल्स हैं, इट हैज ह्यूज रिजर्व ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम. अब देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक आपने सुना होगा हिंडाल्को प्लांट जो कि रेणुकूट मिर्जापुर में है. राइट, तो वो हिंडाल्को प्लांट है, ये मिर्जापुर यूपी में है और ये बाउंड्री में है अमरकंटक से. और यहां पर आपका क्या है, बॉक्साइट.
कौन सी हिल का? अमरकंटक का। और यहां पर आपका क्या है, झारखंड में एक फेमस प्लेस लोहारदागा, जो कि क्या बॉक्साइट का रिजर्व है। अब ये देखिएगा, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वेबर का लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, वेबर का लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, कि वेबर क्या बोलता है कि अगर यहां पर मेरा रॉ मटेरियल 1 है, यहां पर मेरा रॉ मटेरियल 2 है, और ये अगर मेरा मार्केट है, तो इंडस्ट्री को कहां लगना चाहिए? बीच में। दिस इज द लीस्ट कॉस्ट मॉडल ऑफ वेबर इन ऑर्डर टू सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहां पर हिंडाल को अमरकंटक हिल्स और लोहारदागा के बीच में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से बॉक्साइट उसको यहां से भी मिल पाता है और यहां से भी मिल पाता है, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर Satpura and Mekal division. Now I am going to taking last physiographic unit, that is what? Baghelkhand Plateau. I am taking last physiographic unit, that is Baghelkhand Plateau. देखो, सबसे पहला पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ एमपी विच कवर्स एन एरिया ऑफ 7%। स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ एमपी covers 7% of total area. It includes district like सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया। This region is famous for coal production, this region is famous for coal production। बहुत ज़्यादा अमाउंट का कोल मिलता है सीधी, सिंगरौली और सोहागपुर में। फिर अगर आप देखोगे, दिस रीजन ऑल्सो हैज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि डायरेक्टली कोल की अवेलेबिलिटी है। अब कोल की अवेलेबिलिटी से थर्मल पावर प्लांट है, तो यहाँ पर जो सिंगरौली है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। ये किस बेसिस पे? थर्मल पावर प्लांट के बेसिस पे, राइट। अगर हम रेनफॉल वगैरह की बात करेंगे तो ये रीजन में 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। यहाँ पर ये रीजन राइस के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पर अगर आप जनरली देखोगे तो एक ट्राइब रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेगा। अच्छा हाँ, आप अगर फिजियोग्राफिक यूनिट्स में अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो ट्राइब भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं ट्राइब का आपको एक जनरल बताता हूँ कि नदर्न साइड, अगर मैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की बात करूँ तो नदर्न साइड आपका सहरिया ट्राइब रहती है। कौन सी ट्राइब रहती है? सहरिया ट्राइब। और ईस्टर्न साइड की बात करें तो कौन सी ट्राइब रहती है? बेगा ट्राइब।
कौन सी ट्राइब रहती है? बेगा ट्राइब। अगर वेस्टर्न की बात करूं तो भील ट्राइब। अगर वेस्टर्न की बात करूं तो भील ट्राइब। तो भील ट्राइब का डोमिनेशन कहां पर है ज्यादा? मालवा प्लेट्यू में। कहां पर है? मालवा प्लेट्यू में। अगर सदर्न साइड की बात करूं तो कौन सी ट्राइब? कोरकू ट्राइब। कौन सी ट्राइब? कोरकू ट्राइब, राइट। और ये जो नर्मदा वैली है, नर्मदा, कौन सी वैली है? नर्मदा वैली। तो यहां पर कौन सी ट्राइब इनहिबिट करती है इसके अराउंड? इधर भी और इधर भी गौंड ट्राइब। कौन सी ट्राइब? गौंड ट्राइब। तो फिजियोग्राफिक यूनिट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? ट्राइब, राइट। तो हमने जो 7-8 पैरामीटर डिस्कस करे हैं उसी के अराउंड आपको हर फिजियोग्राफिक यूनिट को एक्सप्लेन करना है। और देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हर अल्टरनेट ईयर, ये टॉपिक से हर अल्टरनेट ईयर, मार्क माय वर्ड, हर अल्टरनेट ईयर 15 मार्क का एक क्वेश्चन आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 2015 की बात करें तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मालवा प्लेट्यू। एक क्वेश्चन आया था। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ एमपी एंड प्रोवाइड इट्स डिटेल्ड अकाउंट। ये 2017 में आया था। अब देखो एक क्वेश्चन आया था 2014 में, यही कि डिस्कस अबाउट द बघेलखंड प्लेट्यू, डिस्कस अबाउट बघेलखंड प्लेट्यू। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो पीटी में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पचमढ़ी से आते ही आता है। मैंने 2019 में भी आपको डिस्कस करा कि असीरगढ़, बड़वानी, अखरानी, वो वाले हिल से भी एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो आपको अमूमन पीटी में 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हाँ, इनकी पीक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पीक्स का पीक जो हाईएस्ट पीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक क्या है? सिगार, जिसकी हाइट कितनी है? 881 मीटर। फिर दूसरी पीक मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट कौन सी है? जाना पाव हिल्स, जिसकी हाइट कितनी है? 854, राइट। ऐसे ही बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सिद्ध बाबा, जिसकी हाइट कितनी है? 1173। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं और वो आपको याद ही रखने हैं, उनको क्रैम ही करना है, बाय हार्ट करना है। बार बार पढ़ोगे तो ही क्रैम कर पाओगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। हो सकता है देखो कोई ना कोई पॉइंट छूट गए हो, तो हम आगे के लेक्चर्स में हर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल इम्प्रूव इन दैट। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।